আর একটু জোরে। পবিত্র কোরআন পাকে আল্লাহ বলছেন, এবার শুনো, এটা আল্লাহর চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। সুবহানাল্লাহ। দেখ আস্তে হয়ে গেল, হাত তুলে। আল্লাহর কথা, আল্লাহর চ্যালেঞ্জ। আজকে যে বক্তব্য দিচ্ছি এটা মনে হচ্ছে আমিও জানি না কোথা থেকে দিচ্ছি, মনে হচ্ছে আল্লাহর রহমত নাজিল হচ্ছে। আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখেছেন যতগুলো ওয়াজ শুধু উর্দুতে বলেছি, কিন্তু আজকে অনেকগুলো মানুষ বলার আপনি একটু বাংলায় বলুন। আমি তো বাংলা জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে আল্লাহর রহমত নাজিল হচ্ছে। জোরে বলুন। যেহেতু আমি সিলিন্ডার হয়ে গেলাম, বাংলা হতে পারে ভুল, মানুষ যদি সিলিন্ডার হয়ে যায় তার ভুল ধরা যায় না। যদি মস্তানজি সিলিন্ডার যদি না হয় বলে আমি বাংলা বেশি জানি, তাহলে ওর পথে পথে ভুল ধরবে। আর যদি বলে আমি বাংলা জানি না, আমার কেউ ভুল ধরবে না। জোরে বলুন। এটা কার চ্যালেঞ্জ? আল্লাহর। ইনি বললেন কোরআনকে, আল্লাহ বললেন শুনো, আমি তৌরাত নাজিল করেছি, জবুর নাজিল করেছি, ইনজিল নাজিল করেছি। এটা কার? আল্লাহ বলেন, কিন্তু এর আমি হেফাজতের জিম্মেদারি নিই। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম চলে গেছে, তার সাথে কিতাবও চলে গেছে। মুসা কালিমুল্লাহ চলে গেছেন, তৌরাত খুঁজে পাবেন না। হযরত ঈসা চলে গেছেন, ইনজিল বাইবেল অরিজিনাল পাবেন না, এটা ডুপ্লিকেট। কিন্তু এমন একটা গ্রন্থ, সেটা কোরআন, আমার বিশ্বনবী চলে গেছে, এখনো পর্যন্ত তার মর্যাদা কোরআন আছে না? আল্লাহ এবার বলছেন শুনো, তুমি এই কথা বলছো, ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। কত নম্বর? সূরাতুল হিজর আয়াত নম্বর 9। আমি আয়াত নম্বরটা বলে দিচ্ছি, খুলে দেখাতে পারছি না, কিন্তু আমার চিহ্ন দেওয়া আছে, এখন দেখাতে গেলে টাইম খুব সংক্ষিপ্ত। আল্লাহ বললেন শুনো, নিশ্চয়ই আল্লাহ বলছেন শুনো, এই কোরআনের রক্ষক, এই কোরআনের হেফাজতকারী আমি আল্লাহ নিজে আছি। তার জন্য বলছে উর্দু ভাষাতে, কৌলে মোহাম্মদ কৌলে খুদা ফরমান না বদলা जाएगा, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, मगर बदलेगा सारा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। এবার আসুন, কোরআন থেকে আজকে আপনার বক্তব্য শোনাচ্ছি, অনেকগুলো শোনালাম, এবার শুনি। আমি কোরআন থেকে দেখব এবং এই বইটা পিছন দিকে আপনাকে হিন্দু ভাইয়ের গ্রন্থ দেখাবো। ইনশাআল্লাহ আপনারা বুঝবেন কি এই কিতাবের মধ্যে, শুধু আমার দেখাবার দরকার। এটার নাম হলো গীতা। কি নাম আছে এর? নাম হলো গীতা। দেখুন এই गीता अबू बकर सारे सुराख को बंद कर दिया है, लेकिन देखा कि एक सुराख में उनका पैर है। सांप ने देखा कि नबी का खुशबू हम पा गए हैं, जिस नबी के लिए हम पागल हैं, जिस नबी के लिए हम दीवाना है, जिस नबी के लिए हम इतने दिन इंतजार है, वो नबी मेरे गर्त में आ चुके हैं। लेकिन मैं बड़े बदकिस्मत है कि आज ही मैं खाने के लिए निकल गए। ये हदीस है मिस्कात शरीफ जिल्द सानी बाबुल मौज़ेजा पेज नंबर 542। जोर से बोलो, कितना नंबर? 542। उधर 3 हदीस पढ़ा, बुखारी, मुस्लिम, मिस्कात, और तीनों हदीस में हर एक हदीस में 1 लाख करके इनाम छोड़ा, और इस हदीस में भी 1 लाख रुपया का इनाम अगर कोई गलत साबित कर दे। प्यारे दोस्तों, मिस्कात शरीफ जिल्द सानी बाबुल मौज़ेजा पेज नंबर 542। वक्त नहीं है हदीस पढ़ने का कि आपको सुनाऊं, सिर्फ तर्जुमा करना। जोर से बोलो। प्यारे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, हुजूर चारों तरफ दुश्मन हो चुके हैं। जोर से बोलो। अब हमने इस हदीस को एक हाथ में लिया, लेकिन कितने मेहनत किया आप लोग समझो। मैं हिंदू धर्म की किताब का जायजा लिया कि ये क्या बात है। किताब का नाम 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अथर्व वेद का पहला मंत्र 127 नंबर मंत्र, और मंत्र सुलूक नंबर 127, और मंत्र नंबर 1। जोर से बोलो। क्या लिखा है जानते हो? इसकी किताब से 100 करोड़ साल पहले की बात है। लिखा क्या? इदं जनाबो सरत निरासं
इस्तविस्सतो षष्टिं स्वस्सरा नवो तिंचो कौरम आरिस्मे सूददम है। समझा आप लोग? सर हिलाओ। नहीं समझे? यह अथर्व वेद का 20वें खंडा और श्लोक नंबर 127 मंत्र नबी लिखता क्या है? नबी के आने से कबल की बात है अथर्व वेद में कि एक नबी आएंगे, उनका 40 काफिर दुश्मन होंगे और सबसे भारी काफिर 40, उसके बाद 60,090 दुश्मन होंगे, क्योंकि उस पर मक्के की आबादी 60,090 और 40 बड़ा कट्टरपंथी काफिर होंगे। इस हदीस में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह बोलो। मैंने दोनों के टच किया। अच्छा, मैंने हदीस खोला, ये बात उनकी किताब की है, हमारे नबी की हदीस क्या? अल्लाह के नबी मेरे दोस्तों अबू बकर से हिजरत का मामला किए। अबू बकर 6 महीना तक बिस्तर पर सोया ही नहीं। जोर से बोलो, ये इसका बयान कर रहा हूं, जोर से बोलो। जज्बा देखो। अली प्यारे इधर आओ। अल्लाह की तरफ से जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह 60,090 दुश्मन बन चुके हैं, 40 बड़े काफिर हैं, इन लोगों ने मीटिंग कर लिया है। जिब्रील कह रहा है अभी अभी अल्लाह का हुक्म है कि हिजरत करो। मचल कर दीवाना बनकर ठंडे पर क्यों बढ़ जाते हो? जरा जोश आओ, दिल से हार्ट से बात निकालो। सुभान अल्लाह। और मचल कर तुम जितना सुभान अल्लाह की दाद दोगे उतने ही कुरान हदीस अंदर से निकलेंगे, और दाद नहीं दोगे तो नहीं लोगे। कीमती तकरीर कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे अली इधर आओ। अभी अभी जिब्रील कुरान की आयत लेकर आया, हिजरत करना। हिजरत समझते होते हो? मक्का छोड़ना है, जन्मभूमि को छोड़ना है, अब्बा माँ का जन्म स्थान को छोड़ना है। आप बताओ, कोई भी इंसान जब जन्मभूमि को छोड़ते हैं तो रोते हैं कि नहीं है? बोलो। मेरे आका ने इस काबा को आज देख रहे हो, काबा को मोड़ मोड़ के देख रहा है। एक घर काबा मेरे अब्दाद इब्राहिम ने बनाया, इस्माइल ने बनाया, आज मैं काबा छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इस तंगी की वजह से अली आओ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। अच्छा, आप लोग एक सवाल करता हूं, बताओ, मेरा चारों तरफ से दुश्मन है, मेरे बिस्तर पर आएगा दुश्मन, आप सोएंगे? नहीं सोएंगे। अली कहता है कोई बात नहीं। अली एक बात सुन लो। क्या बात हुजूर? मैं अभी हिजरत कर रहा हूं, 40 काफिर रेडी है तीर लेकर के, नेजा लेकर के, लेकिन सुन लो, तैयार घेर लिया है और 60,090 की जमात उधर है, निकलना मुश्किल है। लेकिन तुम सुबह में जब आएगा तो अमानत, क्योंकि नबी का नाम एक आमीन सादिक भी है, कुछ आदमी पैसा रखने दिया है, उसको सुबह में देकर आना। जोर से तुम देकर आना। अली कहा मेरा कोई टेंशन नहीं है कि जुबान से निकली हुई बात नबी की हदीस है, कोई माँ का लाल नहीं है, माँ का दूध नहीं पिया है कि मुझे हमला करे, क्योंकि नबी ने कह दिया है सुबह में तुम अमानत दे के आना। पता चला मुझे ऐसे नींद आई, लाइफ तक मैंने ऐसे सोया ही नहीं। या खुदा, कोई टेंशन नहीं है कि नबी ने कह दिया। अल्लाह 40 काफिर ने जाए, निकलूंगा कैसे? अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, एक मुट्ठी बालू में, सुभान अल्लाह बोलो, एक मुट्ठी बालू में क्या करूं? सूरा यासीन पढ़ के दम करो। चारों तरफ काफिर है। बोला दम करना तुम्हारा काम, तुम फेंक दो और सबके आंखों में सुरमा की तरह लगाना मेरा कुदरती हाथ। समझ पा रहे हो ना? अल्लाह के हाथ नहीं है, कुदरती हाथ। फेंका सबके आंखों में, समझ पा रहे हो ना? मेरे आंख में क्यों दिए, मेरे आंख में क्यों दिए? अल्लाह के नबी निकल गए। और भी बचल का हाथ उठाकर अल्लाह के नबी निकले, कोई देखे नहीं। अबू जहल का किधर से निकले? बोला नहीं, सोके हैं, रेडी हो जाओ। किसी ने कहा कि हाथ काटूंगा, किसी ने कहा कि पैर काटूंगा, किसी ने कहा कि मर्डर कर दूंगा, किसी ने कहा कि ना रहे 5 न बजे। उन्होंने सूरज को भी उठा दिया, चांद को दो टुकड़ा किया। रेडी है, तलवार लेके, नेजा लेकर के नबी चले तो पता ही नहीं। और भी चल कर अल्लाह अबू बकर के दरवाजे में आवाज दिया,
अबू बकर ने कहा कौन है? बोला आना मोहम्मद। अच्छा बताओ, एक सिर्फ ऐसे किया दर्जा खोल दे, ताज्जुब की बात है। नबी ने फरमाया अबू बकर सोया नहीं? बोला या रसूल अल्लाह 6 महीना कबले से हिजरत के बात कर रहे थे, 6 महीने से बिस्तर पर पीठ नहीं लगाया, यही दरवाजा में टेक लगा के। क्या आशिक का जज्बा देखो अबू बकर को, टेक लगा कर क्या है, 6 महीने से बिस्तर पर सोया नहीं। क्या बात है हुजूर, रात में घबरा गया। ऐ दुनिया वालों, अगर रात 12 बजे आपका मोबाइल बजे आप टेंशन में पड़ जाएंगे। रात की तारीखों में अगर नबी आए, अबू बकर कांपने लगा। क्या हादसा है अल्लाह के हबीब, बताइए। बोला हिजरत की आयत नाजिल हो चुके, अभी अभी चलो, बात बोलने की वक्त नहीं है, वो आ रहे हैं। तैयारी किया, नबी दौड़ रहे हैं, अबू बकर जा रहे हैं, चल रहे हैं। एक मकाम अबू बकर कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। साहबी ने कहा अबू बकर दाएं चलना तो समझ में आते हैं, बाएं चलना तो समझ में आते हैं, पीछे चलना तो समझ में आते हैं, लाई तक तुमने कभी नबी का आगे नहीं चला है, आज आगे क्यों चल रहे हो? तो जानते हो आशिक के बाहर अबू बकर सिद्दीक ने ये जुमला कहा कि सुनो बात तो सही है, नबी की मोहब्बत के लिए कभी आगे जा रहा हूँ कि दुश्मन का तीर लगे तो अबू बकर को लगे, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, इसीलिए कि नबी के लिए जान कुर्बान कर देंगे। अरे रोज अला नबी की मोहब्बत पर आंसू बहाओ, अगर एक कचरा गिर जाए तो इस पर तुम जन्नती बन जाओगे। प्यारे दोस्तों, नबी चल नहीं पा रहे, अबू बकर बैठ गया। हुजूर मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मेरे कंधे पे बैठ जाइए। मेरे नबी कहने लगा, क्योंकि आली ने जब इस काबे में 360 बूथ था तो आली ने भी यही कहा था कि इस बूथ को तोड़ने के लिए हुजूर आप तोड़िए, मेरा कंधे पे बैठ जाइए। आली कहा था इतना बड़ा पहलवान, तो नबी कहा था जुमला, तू मेरा खत्म नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, बल्कि तू मेरा कंधे पे उठ जाओ। नबी ने अली को कंधे पे उठाया और यहाँ अबू बकर के कंधे पे नबी उठ रहा है, और भी मचल कर और भी दीवाना बनकर। ये सेंटेंस समझ पा रहे हो? इसका मतलब सवाल किया, इतने बड़े बहादुर, इतने बड़े पहलवान शेरे अली का कंधे पे नबी उठा नहीं, बल्कि नबी के कंधे पे उठ के इस काबे में 360 बूथ को तोड़ दिया। तो अली का हुजूर आपने अबू बकर को उठाया, हमें क्यों नहीं उठाया? बोला इसीलिए कि तुमको मैं नबी कंधे पे उठा के ये बता दिया कि जब नबी के कंधे पे उठ के बूतों को तोड़ सकता है, कोई माँ का लाल नहीं है, अली को कोई हरा नहीं सकता। जोर से और भी मचल कर। प्यारे दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक का कंधे पे नबी उठा, लेकिन नबी दोनों हाथ सर पे रख दिया। जोर से बोलो, दाएं पाँव इधर बाएं पाँव। अबू बकर समझा मौका है तो यही है, टाइम है तो यही है, समय है तो यही है। कभी दाहिना पाँव को चूम रहे हैं, कभी बाई पैर को चूम रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, सजदा अलग चीज है, चूमना अलग चीज है। अगर चूमना हराम है तो नबी क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं मना किया? नबी का जुमला सुनो, क्या कह रहा है, क्या कर रहे हैं? और जोर से बोलो। पता चला चुमना, आप अपना बच्चे को भी चुम सकते हैं, फिर सब को भी चुम सकते हैं, बाप को भी चुम सकते हैं, माँ को भी चुम सकते हैं। इसीलिए शिरीक को बिदात नहीं है। शिरीक बिदात वो लफ्ज है जो खुदा के अलावा किसी के आगे सजदा करोगे, ये गुनाह को खुदा माफ नहीं करेगा। चुमना का लफ्ज सुनो, क्या कर रहे हो? बोला हुजूर आपका मेराज अरसे मुअल्लम, आप उम्मे हानी के घर सोए रहेंगे, 70,000 फरिश्ता आएंगे, बिलाल आपका कदम चूमेंगे, मर्जी आए जाए, मर्जी आए ना जाए, आपकी मर्जी है। आपका मेराज खुदा अरसे आदम पे कराया, मैं दोनों पैर चूम करके मेराज हासिल कर रहा हूँ। और भी मचल कर
वक्त की कमी है, अबू बकर की एक हदीस और भी समाप्त फरमाइए। प्यारे दोस्तों, मिशकात शरीफ जिल्द सानी अबू अबुल मनाकिब उमर सफा नंबर 556 की हदीस, जोर से बोलो। इस हदीस में भी 1 लाख रुपया का इनाम, इस हदीस में भी 1 लाख रुपया का इनाम 556 की हदीस है। मेरे दोस्तों, यही तज़किरा उमर के सामने हो रहा है। उमर कह रहा है, काश अगर नबी को हिजरत की रात मैं पाते तो मेरा भी नसीब चमक जाता। और जोर से प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आका अबू बकर पहुंचे, देखा एक गार खाद है, गर्ता है, उस कुआं जिसको बोलते हैं। हुजूर आप ठहरिए, पहले अबू बकर को जाने दीजिए। एक लफ्ज अगर गलत है 1 लाख रुपया का इनाम, हदीस सामने हाथ में लिए हुए है। प्यारे दोस्तों, नबी को रख दिया, अबू बकर अंदर गया, जाके हर सुराख को कपड़ा छीर छीर के बंद कर दिया। और भी जोर से, एक सुराख की कपड़ा नहीं है। अबू बकर, मैं बहुत थकावट हूं, जांग अबू बकर की जांग पे नबी सो गए। वहां अली के जांग में, यहां जोर से बोलो, जोर से बोलो, अबू बकर की जांग में, लेकिन एक सुराख का कपड़ा नहीं है, वैसे ऐसे रख दिए। एक सांप ने, उसकी मंत्र श्रीमद् भगवत पुराण में है, वो तो तिसंग भविष्य नीति मुनांसी विसादानी भाई वासुदेवं करागति पुण्य गंधा निस्पृशम। एक आखिरी नबी, आखिरुल ज़मा नबी, उनकी किताब में, सैकड़ों साल पहले की किताब है, उनकी किताब में लिखा है वो नबी आएंगे हिजरत की तारीख में, यही मेरे गर्दन में आएंगे, उसका जियारत करूंगा। अरे उसके जियारत के लिए सब इंतजार है, सब पेट के इधर उधर गया। अबू बकर सारे सुराख को बंद कर दिया है, लेकिन देखा कि एक सुराख में उनका पैर है। सांप ने देखा कि नबी का खुशबू हम पा गए। जिस नबी के लिए हम पागल है, जिस नबी के लिए हम दीवाना है, जिस नबी के लिए हमें इतने दिन इंतजार है, वो नबी मेरे गर्दन में आ चुके हैं। लेकिन मैं बड़े बदकिस्मत है कि आज ही मैं खाने के लिए निकल गए। अल्लाह अल्लाह, नबी के लिए जरा साफ कर देते जगह को। अल्लाह समाद। आप मेरे दोस्तों यूट्यूब वाला चैनल देखो, इसको लिखो 2 आशिकों का लड़ाई। और भी बचल कर, 2 आशिक कौन है? एक आशिक साफ है और एक आशिक अबू बकर है। दोनों आशिकों का लड़ाई देखो। अच्छा, यह एक जुमला दे रहा हूं, प्यारे दोस्तों, इतने सुराख है, दूसरे सुराख से तो भी जा सकते, लेकिन साफ ने एक अकीदा हम सुन्नियों को दिया कि देखो नबी आप किस हालत में है, क्योंकि नबी तक जाने के लिए अबू बकर का वसीला लेना है, और अबू बकर को जब तक नहीं पाएंगे नबी को कैसे पाएंगे, और नबी को जब तक नहीं पाएंगे तो खुदा को कैसे पाएंगे। 1 लाख रुपया का इनाम, ये कुरान सूरा अल इमरान आयत नंबर 31, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो, अगर अल्लाह को राजी रखना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, नबी को मानो। और नबी को मानोगे तो क्या, अल्लाह फरमाता है मैं खुश हो जाऊंगा। और खुश तो दूर की बात है, मैंने कहा अल्लाह तू तो जब्बार है, तू तो कहर है। बोला मैं जब्बार हूँ, कहर हूँ, लेकिन मदीने वाली की चौखट पे आ जाओगे तो हम जब्बार नहीं रहता, तुम्हारे सारे गुनाह को मैं माफ कर दूंगा। अब नारा मारेंगे, मरने जा रहे थे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलो। अब मेरे दोस्तों, 2 आशिकों का लड़ाई देखो, और भी नहीं छोड़ रहा, जान जाए अबू बकर का पैर नहीं टालूंगा, पैर नहीं खींचूंगा। पहले मोहब्बत से इशारा कर रहे हैं, मारा, डांस मारता जाता है, 1 मारा, 2 मारा, डांस पे डांस, इसके का लड़ाई देखो। अबू बकर का मेरा जान चले जाए, दुश्मन को आने नहीं देंगे। नबी सो रहे हैं, सो नहीं रहा है, 2 आशिकों का लड़ाई देख रहे हैं। और भी मचल कर बोलो, 2 आशिकों का लड़ाई। अब लोग तो उर्दू अच्छा समझते हैं, बिल्कुल एकदम आसान उर्दू में, 2 आशिकों का लड़ाई चल रहे हैं। नबी आग बंद के है, लेकिन दोनों का लड़ाई देख रहा है। सांप ने टस पे टस, टस पे टस, टस पे
पे टस मारता जा रहा है, पूरे बदन में ब्लड में विष चालू हो गया। आली तो पैर खींचेंगे नहीं, लेकिन आंख के आंसू ऑटोमेटिक निकलने लगे। दाढ़ी मुबारक से निकलकर नबी का रुख ज़बां और भी चलो बोला। अबू बकर क्या घर का ख्याल है? हुजूर आपने बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे ज्यादा मोहब्बत जिस दिन कलमा पर आऊं, माँ बाप सारी मोहब्बत से आपका मोहब्बत है, घर का कोई टेंशन नहीं है, तो रो क्यों रहे हो? लेकिन इतने देर में जिसको मैकरासा बोलते हैं हम लोग और कबूतर बोलते हैं, अंडा भी पड़ गया। लेकिन क्या मामला है? बोला हुजूर साहब हमें डांस दे रहा है, तो आने तो पैर खींचो। पैर जैसा ही खींचा, सांप ने नबी का कदम चूम रहा है। और जोर से बोलो, सांप की बोली नबी सुन रहे हैं। क्या बात है, इतना सुराख है, एग्जाम ले रहे हैं। बोला या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए पागल हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण में सुना कि आप यहाँ आएंगे, आपकी खुशबू जिस रास्ता से जाएंगे, लेकिन मैंने वो सुराख से इसीलिए नहीं किया क्योंकि वसीला का जरूरत है। लेकिन इनको मैं प्रेम कर से, मोहब्बत से टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये आशिक हमसे भी बड़ा आशिक। मैं हार गया, 10 पे 10 मरता हूँ, 10 पे 10 मरता हूँ, 10 पे 10 मरता हूँ। नबी का कदम चूम के कह रहा हुजूर आपकी आशिक रसूल को मैंने अपना। बोला घबराओ नहीं, अरे मैं मेडिसिन अपने हाथ में। बताओ ये हदीस का नाम, बुखारी की हदीस से कोई माँ का लाल गलत साबित करेगा 1 लाख रुपया। मेरे नबी ने मुंह से थूथू निकाला, थूथू समझते हो, अबू बकर कहाँ काटा है, जैसे ही लगा दिया सारे विष खत्म। अरे जोर से बोलो और दीवाना बनकर बोलो और मचल कर बोलो। एक आखिरी हदीस सुना के खत्म कर दूंगा, जोर से बोलो, तो उनकी तकरीर मुकम्मल होने दीजिए। ये मेरे दोस्तों, ये हदीस आपका तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल आपका जहूद पेज नंबर 64 अन अनस अन्नहु काला जा रजुल इला रसूलिल्लाह फकाल मता क़यामुस सात फकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलाते फलम्मा कदा सलातहु काला आइना साइल अन क़यामिस सात फकाल रजुल आना या रसूलल्लाह काला मा अदत लहा काला मा अदत लहा कबीरा सलावतिन वला सौमिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। जोर से बोलो और दीवाना बनकर बोलो और गवाना बनकर बोलो। मेरे दोस्तों और भी एक हदीस, ये है आपका मोहब्बत रसूल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अवा नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी जिब्रील फअख़ज़ बियदी फअरानी बाबल जन्नत अल्लज़ी यदखुलु मिन उम्मती फक़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदित्तु इन्नी कुन्तु मअका हत्ता अंज़ुरा इलैक फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, ठहरिए और जोर से बोलो। मस्तान जी बोलता है रावी भी है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अब हदीस सुनो, तर्जुमा सुनो, जोर जोर सुनो। मेरे प्यारे आका साहबी है, अबू बकर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, हजरत तलहा। वो तकरीर क्या है जिसमें सुनने वाला बिलाल था, सुनाने वाला आमना का। सुनने वाला बिलाल था, सुनाने वाला आमना का लाल है। जैसे इसमें मजा मिल रहा है, सुनाने वाला मैं हूँ, सुनने वाला आप लोग है। तो आप लोग गैरू नहीं है, बल्कि यहाँ मास्टर भी है, या प्रोफेसर भी है, या इंजीनियर भी है। तो बोलने वाला को भी मजा है, सुनने वाले को भी मजा है। मेरे नबी फरमा रहा है, एक बात बोलो, बोले क्या? अभी जिब्रील आए और आके मेरा हाथ को पकड़ा, मेरा कलाई को पकड़ा, मेरा बाजू को पकड़ा और मुझे उस जगह पे लेकर गए जो मेरी उम्मत के लिए स्पेशल गेट है। और जोर से बोलो, आदम की उम्मत के लिए नहीं, मूसा के लिए नहीं, मेरी उम्मत के लिए। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मती, यानी सबसे बेहतर उम्मत हम लोग आखिरी नबी का। उसके बाद क्या हुआ? तकरीर चल रहा है, सब कोई सुभान अल्लाह बोल रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है। अबू बकर रो रहे। मेरे नबी ने जब देखा सारे खुश हैं, अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्तों, my dear prophet discussed, then Abu Bakr Siddiq fully cried.
अबू बकर तुम्हारा रोने का सबब क्या? बोलो, रोने का कारण किया, रोने का वजह किया। अबू बकर को बाहर होकर कहते हैं मचल कर, ऐ अल्लाह के हबीब, आपने तो सब उम्मत की बात कहा है, लेकिन मैं रोता इसीलिए हूँ, मैं रास्ते में आपके साथ, बदर में आपका साथ, ओहुद में आपका था, लड़ाई में आपका साथ, आज कब्र में भी, जोर से बोलो, लेकिन रोता इसलिए अल्लाह के हबीब आप मेरे बारे में तो बात नहीं बताए। हदीस सुनो, एक 5 लाख रुपया का इनाम अगर गलत साबित कर देगा, मेरे आका मुस्कुराने लगे। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती। और जो से बोलो, मेरे आका ने फरमाया, आफ्टर दैट माय डियर प्रॉफिट सेड टू हिम, you are a lucky person, you are a first citizen of holy paradise among my ummah। अरे अबू बकर तो बड़ा किस्मत का धनी है, तू बड़े नसीब वाला है, मैं नबी कह दिया सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। और मचल कर मस्तान जी सीना से आवाज निकालो, मैं अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये चारों तरफ मास्टर है, लेकिन ये खुदा का फजल है। मेरे दोस्त हर वक्त तकरीर नहीं होती है जब तक खुदा की रहमत नाजिल नहीं होती है। अब मेरे दोस्तों जल्दी के साथ जा रहा हूँ, ये हदीस तिरमिज़ी करके खत्म कर रहा हूँ, माफ कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे आका। एक सहाबी हजरत अंस बयान करते हैं, हुजूर क्या हुआ? बोला एक सहाबी आया, माय डियर प्रॉफिट व्हेन द डेट ऑफ लास्ट जजमेंट विल कम, ए अल्लाह के हबीब कयामत कब आएगा? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, कयामत कब आएगी? मेरे आका ने उसका जवाब दिया, कयामत के बारे में तैयारी किया है? जोर से बोलो। आका मेरे खुदा की कसम बोल रहा हूँ, आप लोगों से पूछा जाए कयामत की तैयारी कर रहे हैं, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, नमाज क्यों पढ़ता हूँ, रोजा क्यों रखता हूँ, हज क्यों करता हूँ, ज़कात क्यों देता हूँ, अरे रमजान महीने में रोजा क्यों रखूंगा, यही तो कयामत का दिन। जोर से बोलो, यही तो तैयारी है। लेकिन आशिक के बाहर क्या जवाब देते हैं? नमाज भी मौजूद है, हज भी मौजूद है, ज़कात भी मौजूद है। जैसे ही पैगंबर ने कहा तुम तैयारी किए हो, तो साहबी रसूल कदमे रसूल चुमने लगे। जोर से बोलो, 5 लाख रुपया का इनाम गलत साबित करेगा तुम, मोह मांगा। उनको चलन दे रहा हूं जो माँ का दूध पिया है, डब्बे का दूध पीने वाले को नहीं, माँ का दूध जो पिया है उसको चलन दे रहा हूं। 5 लाख रुपया का इनाम गलत साबित करेगा। मेरे आका क्या तैयारी किया है? साहबी कहता है, व्हेन अल्लाह आस्क्स मी हु इज गिव यू प्रेजेंट फॉर मी अल्लाह आई साहबी नॉट प्रेजेंट नमाज रोजा हज ज़कात इन फ्रंट ऑफ माय अल्लाह। जोर से बोलो, अरे क्या पेश करेगा? अल्लाह जब पूछेगा कयामत के दिन तू क्या लेकर आए हो, मैं नमाज को पेश नहीं करूंगा, आई साहबी नॉट प्रेजेंट नमाज रोजा हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात को पेश नहीं करूंगा, मेरा सब कुछ है लेकिन कुछ भी पेश नहीं करूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐसा भी क्या पेश करोगे? सुनो हदीस का जुमला, मेरे दोस्त साहबी कहता है, आई विल ओनली प्रेजेंट द होली लव ऑफ माय डियरेस्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ, जोर से बोला एक दो जुमला के साथ, मैं सिर्फ मोहब्बत का तोहफा को खुदा की बारगाह में पेश करूंगा। और भी जोर से, और भी मचल कर। तकरीर के बाद का 1 महीना बंद रहेगा, बार बार यूट्यूब में नहीं आऊंगा। आ जाओ, ये मेहनत की तकरीर है, खुदा की कसम। मेरे नबी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर कहता है, काला नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। माय प्रॉफिट सेज टू हिज साहबी दैट दिस न्यूज़ डिक्लेयर्ड इन फ्रंट ऑफ a common people of this world, one who love whom the last judgment will happen with him। ऐ साहबी तू कोने कोने में डिक्लेरेशन कर लो, जिससे जिसकी मोहब्बत होगी कयामत के दिन उसी के साथ उठोगे। और मचल कर खुदा की कसम ये बात तय कर लो, तफसीर कुरान से मैसेज दे रहा हूं कि मोहब्बत अगर ताजदार मदीने से किए हो, नबी से किए हो, कुरान की हुक्म के बिना पर, तो कयामत के दिन हम ताजदार मदीने के साथ उठेंगे। आखिरी जुमला मेरे दोस्तों ये कह करके ही पूरे तकरीर का निचोड़ दे रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, अंग्रेज ने जब हमला किया, मुसलमानों का घर तोड़ दिया, मुसलमान बर्दाश्त कर लेते हैं, मकान को तोड़ दिया, बर्दाश्त कर लेते हैं। अंग्रेज ने गहराई में
में किया, क्या बात है, क्या मामला है? घर तोड़ दिया, बना लिया, कोई बात नहीं है। अंदर गया, देखा मुसल आशिक रसूल का सीना, ये सीना नहीं है बल्कि मदीना बन चुका है। जोर से बोलो, मदीना बन चुका है। मेरे दोस्तों, अब मामला यह है, कुरान वो भी पढ़ते, कुरान हम भी पढ़ते, लेकिन लफड़ा क्यों है कि हदीस वो भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, लफड़ा सिर्फ नजर का है। जोर से बोलो, सिर्फ नजर का। क्योंकि क्या कुरान वो नहीं पढ़ता है, हदीस वो नहीं पढ़ता है? क्यों नजर का? मेरे दोस्तों, अम्मा के नबी बैठे हैं, अबू जहल का आपकी तरह खराब नहीं है। नबी ने कहा सद्दकता। एक काफिर आया, उतबा आपकी तरह खराब नहीं है, सद्दकता। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, आपकी तरह कोई नहीं है। उमर आया, आपकी तरह कोई नहीं है। कहा राइट, सद्दकता। साहबी ने पूछा हुजूर ये हिकमत समझ नहीं पाए, अबू जहल खराब कहा तभी सच है, सही है। उमर अच्छा कहा, सही है। बोले तुम नहीं समझोगे, मैं मिसले आईना हूं। अरे जोर से मचल कर, तो जुमला में तकरीर खत्म। मिसले आईना हूं, मैं ये आईना हूं, इसलिए अबू जहल की नजर से जो देखा तो मेरे तरह खराब नहीं है, ये भी सही है। लेकिन मुसलमानों, ये जुमला दे रहा हूं, हम मेरे दोस्तों, अगर कुरान पढ़ना है तो अबू बकर की नजर से पढ़ोगे, उमर की नजर से पढ़ोगे, उस्मान की नजर से पढ़ोगे। अगर नजर से पढ़ोगे तो नबी को कहोगे लाजवाब है, उनका हाथ लाजवाब, उनका पैर लाजवाब, उनके दंदान लाजवाब। अगर अबू जहल की आंख से पढ़ोगे, उतबा की आंख से, तो नबी को हमारी तरह कहोगे, हम जैसा कहोगे। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह हम लोग के आंख में अबू बकर का आंख लगा दे।